अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum assalam. Is my voice audible? हाँ, यस सर। Okay, just a minute. Fine. Yeah, can you just share me your syllabus if you have any soft copy? सिलेबस ओके। Yeah, yeah, yeah. All your study material, your syllabus, everything. नो आई डोंट। या आई हैव मटेरियल्स, आई विल सेंड यू द Yes, पिक्चर्स yeah, ऑफ द yeah, लेक्चर। yes, yes. Your syllabus, whatever, your textbook, whatever reader you're following. या ओके, आई विल। You can वेट just सर। share the screen actually. नो सर, बिकॉज आई एम यूजिंग लैपटॉप फॉर क्लास। Okay, okay. So, आई। all right. Okay, I think I'm on WhatsApp, I'm getting it. या Okay. आई So विल it's सेंड just, यू। yeah, just the first page, I think. Okay. सेकंड पिक्चर्स, दैट इज ऑल माय चैप्टर्स आई हैव। Okay. Let me just check that again. Yeah. So rational numbers, exponents and powers, squares and square roots, cubes and cube roots, and so on. Right? या बट आवर Okay. ऑनगोइंग चैप्टर इज इन स्कूल इज अंडरस्टैंडिंग quadrilaterals. Okay. 12th Tomorrow chapter. I will have Understanding test quadrilateral. of that. Okay. You have a test on that. Yeah. All right. So can you just take me through the pages of that textbook? Like I can, so that I can see and teach you. I mean, Okay. yeah. Okay. All right. Fine. So yeah. Here, do you have any kind of doubts on this? I mean, what do you want me to like? What can I teach? I mean, regarding the open curves, closed curves. Are you finding? No, because I did not understand the chapter. Okay. Okay. So shall I start from the scratch? Yeah. Okay, sure. Fine. So you see here, understanding quadrilaterals. First of all, quadrilateral is a four-sided polygon. Okay, a Okay. four-sided figure. For example, you have triangle, which is a three-sided polygon, closed figure, a three-sided closed figure, right? Yeah. Similarly, quadrilateral is a four-sided figure. Oh. Okay. So Okay. now this, Yeah. first we just have, this lesson begins with the basic understanding of curves. Okay. Curve. Okay. Yeah. Polygons are generally like, poly means many, gons means something like sides. So many sides. Yeah. Okay. So all of them are plane figures, like two-dimensional figures. Okay. They extend in X and Y directions. So Okay. now, curve is a figure, just like it's something like a freehand drawing on a plane surface, right? Which you can draw with Can a you point. explain me in Hindi? Like, ठीक है, ठीक I है, can. ठीक है, ठीक है। तो ये कर्व्स हैं, देखिए आप जो जी। मतलब इसमें पेपर पे देख सकते हो, ये फर्स्ट पेज पे जैसा कर्व्स जी। है जी। कि लाइन एक फ्री हैंड ड्राइंग है, ठीक है। जी। और यहाँ पर भी देखिए एक तरफ स्पाइरल है, फ्री हैंड ड्राइंग है, उसमें जो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ठीक है। कर्व जो है स्ट्रेट लाइन भी हो। तो ओपन कर्व हाँ, मतलब कि कहीं मतलब एक क्लोज नहीं हो रहा है, एक तरफ तो खुला है, जैसा आप देख सकते हो ना। जी। तो जो जैसा हाँ। कि तीन ओपन कर्व, उसमें तीन एग्जांपल्स देखिए आप, ठीक है। जुड़ा हुआ हाँ। नहीं है, कहीं जी खुला सर। हुआ है, राइट। जी हाँ। है ना, यहाँ एक लूप ऐसा जैसा बना हुआ है, तो दोनों भी जो है ओपन, टच नहीं, मतलब क्लोज नहीं हो रहे। जी। समझ रहे हैं आप। सेकंड में भी एस के जी। जैसा बना हुआ है, जो एस लेटा हुआ एस है, राइट। हाँ। तो यस सर। टोटली जो है एक से दूसरे को जुड़ा हुआ नहीं है, जस्ट एक समझ लो, एक रस्सी है, छोटी रस्सी है। वो रस्सी को जो है जी। इस तरह से बना दिए, लेकिन रस्सी के दोनों भी छोर जो है ना, दो एंड्स जुड़े हुए नहीं है, समझ रहे हैं ना आप। जी मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो वो ओपन कर्व है। तीसरा भी देखिए जेड के जैसा है, देखिए
जो एक जेड है और फिर एक रेक्टेंगल के जैसा पोर्शन है, लेकिन खुला हुआ है, जी ओपन कर्व्स है। अब देखो उसके बनिस्बत क्लोज्ड कर्व्स में देखिए कैसा है कि दैट बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड अ क्लोज कर्व। जैसा कि अब सर्कल है पहला वाला, जी क्लोज है, बंद हो गया है। देखो एक मतलब जैसा कि कहीं शुरू हुआ समझो, जैसा कि आपका एक पॉइंट से आपने शुरू किया सर्कल बनाना, ठीक है। जी तो जैसा गोल बनाते जाते हो, गोल बना के उसी पॉइंट पे आप बंद हो, मतलब खत्म करते हो, एंड एट द सेम पॉइंट, ठीक है। जी सर। तो क्लोज कब हो गया ना, देखिए क्लोज बंद है ये। ए पॉइंट देखो आप, ए वाला फिगर, बी फिगर देखो आप, एक पॉलीगन बताया है, जी फोर साइडेड पॉलीगन है, ये भी क्लोज फिगर है। समझ लो कि फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन से शुरू किया, पेंसिल पेंसिल से नीचे ड्रॉ किए आप, राइट साइड ड्रॉ करे, फिर लेफ्ट साइड में आप जो है ऊपर जाते हो, फिर वहीं पे फिर से लेफ्ट साइड में आप जो है पेंसिल से जो है लिखते हो, और वही पॉइंट पे खत्म कर दो वापिस जहाँ से। सेम पॉइंट पे आ जाते हैं अपन। हाँ, वापस क्लोज सेम पे आ पॉइंट जाते पे आ जाते। तो वो क्या है, क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि आप जहां से शुरू करें वहीं पर जो है खत्म कर रहे हैं आप पूरा बना के। तो क्लोज हो गया, उसके अंदर का एक रीजन एक बंद हो गया, समझ रहे हैं ना आप। जी तो सी में भी देखो, सी में भी जो है जैसा कि मतलब यहाँ पे जो है दो ट्रायंगल्स भी बन गए, दो ट्रायंगल्स भी दिख रहे हैं, और इसमें भी जी क्लोज्ड हो गया। जैसे कि आप इसको किसी तरह भी देख सकते हैं आप, ऊपर से ऊपर के हिस्से से नीचे ड्रॉ कर रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, फिर नीचे से ऊपर उसी पॉइंट पे जा रहे हैं जहां से शुरुआत करे थे, है ना। जी सर। तो वो एक क्लोज का। अब देखो मैं एक बार व्हाइट बोर्ड में बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक व्हाइट जी बोर्ड का टूल रहता है, एक मिनट। अभी यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, इसमें मैं आपको शेयर करता हूँ। दिख रहा है ये आपको? नहीं, व्हाइट बोर्ड नहीं बता रहा हूँ मुझे। नहीं बता रहा यहाँ पे? मैं ये आपके फोन में था, आपको स्क्रीन शेयर कर लीजिए अगर आपके फोन में हाँ है। हाँ, मैं एक ये अभी आपको दिखना चाहिए। दिख रहा है क्या आपको ये अभी? हाँ जी, अभी दिख रहा है सर। दिख रहा है ना, राइट। अब ये बोर्ड में आपको बताता हूँ, ड्रॉ बताता हूँ मैं। जैसा कि आप समझो, एक यहाँ पे मैंने शुरू किया, राइट, ये मैं ऐसा बना रहा हूँ, राइट। ऐसे बना के फिर मैंने ऐसे लिया, फिर यहाँ इस तरफ लिया, फिर यहीं पे मैं जोड़ दे रहा हूँ। यहाँ से शुरू किया, यहीं जोड़ दिया, तो ये क्या है, क्लोज कर्व बन गया, समझ रहे हैं आप, हाँ जी सर। राइट। और वो ओपन कर्व में क्या था, मैं ऐसे शुरू किया, ऐसे शुरू किया, ऐसे शुरू किया, और ऐसे शुरू किया, ऐसे शुरू किया, ऐसे रोक दिया मैं। लेकिन ये और ये अब बंद नहीं हुए, समझ रहे हैं ना आप? जी 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 ये फर्स्ट और ये, तो ये क्या हो गया, वो ओपन हो गया, जी। ये ओपन कर्व हो गया, और ये क्या है, क्लोज कर्व हो गया, राइट। यस सर। राइट, ये तो यस। ये क्या है, इसमें जहां से शुरू किए वहीं से शुरू किया और वहीं पे खत्म करें। और एक क्लोज कर्व क्या बताए थे, ये वाला है, ठीक है। मैंने यहाँ से शुरू किया, फिर इस तरह बना रहा हूँ, या फिर ऐसा है, या ऐसा, राइट। तो ये क्लोज कर्व हो गया ना, एक बंद हो गया ना ये, जी है ना। अगर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं लेफ्ट गया, फिर राइट आया, फिर जो है नीचे आया, फिर राइट आया, फिर ऊपर वहीं पे ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, राइट। तो ये कौन सा कर्व है, यस सर। क्लोज है या ओपन है? क्लोज कर सर। क्लोज कर्व, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये आपको चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या है आपका, हाँ, तो राइट, ये आपका सिंपल। उसके बाद आपने बताया सेकंड पेज, नेक्स्ट पेज में सिंपल क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है। जी हाँ, तो सिंपल क्लोज कर्व्स में क्या है, विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज ए सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। तो सिंपल, हाँ, तो इज ए सिंपल क्लोज कर्व। और उसमें जो है एग्जांपल्स हैं, ए एंड बी आर सिंपल क्लोज कर्व्स व्हाइल सी डी ए आर नॉट, ठीक है। तो ये क्यों है, देखते हैं जरा, देखो। हाँ, सी डी ई है, और उसके बाद जो है सी डी ई आर नॉट सिंपल, और ए और बी सिंपल है, राइट। तो कर्व विच डू नॉट इंटरसेक्ट itself आर सिंपल क्लोज कर्व्स, ठीक है। अब देखने की कोशिश करते हैं, विच डू नॉट इंटरसेक्ट। तो जी यहाँ पे इंटरसेक्ट ए और बी में क्या हो रहा है, देखिए, हाँ देखो, ए और बी में कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये देखो, एक सर्कल है और जो है एक क्वाड्रिलेटरल। तो सर्कल में कैसा जा रहा है, देखिए, देखिए मैंने आप देखो यहाँ शुरू किया, राइट। ये जस्ट मीट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं सर। नहीं सिर्फ हो रहा ना, ये सर्कल। देखो, ये नहीं जस्ट बना। सर्कल किया, मैं ये यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर टच टच किया, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। और यहाँ नहीं बना। आपके पॉलीगन में भी मैंने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया,
ऐसे बनाया, फिर यहीं पे मैं ज्वाइन हो गया, तो ये क्या है, ये क्लोज्ड, मतलब ये से क्लोज कर यहाँ पर भी सिंपल, क्या बोलते हैं आपने, सिंपल क्लोज कर दो। सिंपल क्लोज कर्व, राइट। लेकिन अब इन दोनों में क्या इंटरसेक्ट हो रहा है, देखो ये मैं ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर इसमें एक ज्वाइन हो गया, या फिर जो है ये ले लो, ये लिया, हाँ ऐसे इस तरह से बनाया, तो क्या है, ये इंटरसेक्ट हुए ना, ये लाइंस इंटरसेक्ट हुए, देखिए हाँ जी सर, ये स्टार में इंटरसेक्ट हुए। लाइन। हाँ, तो ये जी सर। डिफरेंस है, ठीक है। ये आपके जो है, ये नॉट सिंपल है, ये सिंपल हाँ नहीं है नॉट ये से, कब। जी जी जी, आपका एक मिनट, ये राइट। तो इसमें वही है, ये अलग अलग पेजेस हैं, तो मैं जरा यहाँ वहाँ रेफर कर रहा था ना, तो एक ए और बी आर सिंपल क्लोज कर्व्स और सी डी ई आर नॉट, तो जो है सी डी ई में क्या हो रहा है कि वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, राइट। सी डी ई में देखो यस आप, सर। एक डी वाला, डी कर्व कैसा है, एट के जैसा है, एट लेटा हुआ एट है, वहां पे क्या है, जी इंटरसेक्ट हो रहा है, देख रहे हो ना आप। जी जी जी। हाँ, सी में भी इंटरसेक्ट हो रहा है, ई में भी इंटरसेक्ट हो रहा है, लेकिन ए और बी में, सर्कल में और पॉलीगन में, क्वाड्रिलेटरल में इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, राइट। तो जहां पे, जी सर। जिसमें विच डज नॉट इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, वो है सिंपल क्लोज कर्व, मतलब कि यहाँ पे आपका सर्कल सिंपल क्लोज कर्व है, और बी बिट यानी कि क्वाड्रिलेटरल भी सिंपल क्लोज कर्व है, लेकिन सी डी ई सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें जी सर। इंटरसेक्ट हो रहा है, समझ रहे हैं आप। जी सर। राइट। अब उसके बाद पॉलीगन्स है, पॉलीगन्स क्या है, सिंपल क्लोज कर्व है, आप हम लोग ऑलरेडी देख लिए सिंपल क्लोज कर्व, जिसमें कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट, कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, राइट। तो वो है यस सर। सिंपल क्लोज कर्व्स। तो पॉलीगन भी एक सिंपल क्लोज कर्व है, मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, देखो ये पूरे लाइन सेगमेंट्स है आपके, राइट। ये अभी जैसा अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये एक लाइन सेगमेंट है, 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 राइट। तो ये पूरे लाइन सेगमेंट्स है, तो यस सर। इसको क्या बोले, पॉलीगन्स बोले। ये जिसमें लाइन सेगमेंट्स को पॉलीगन्स कहते हैं, नहीं नहीं, यानी जो जो सिंपल सिंपल क्लोज्ड कर्व से कर्व है, होते हैं, हाँ राइट, सिंपल जिसमें कि क्लोज हर, कर्व से बनते हैं वो राइट, उसमें लाइन सेगमेंट साइड्स, होते जो भी साइड्स है ना, ये पूरे लाइन सेगमेंट्स होंगे, साइड्स, साइड्स ऑफ हैं। द पॉलीगन। तो पॉलीगन में मैंने अभी, आप आपके टेक्स्ट बुक के पेज में भी देख सकते हो आप, पॉलीगन्स का पेज नंबर कौन सा है, वो 154 है ना, आपने वन जो फिफ्टी फोटो फोर भेजा है, राइट। 154 में देखिए जी आप पॉलीगन्स में, तो पॉलीगन्स में जो फर्स्ट पहला जो है क्वाड्रिलेटरल है, सेकंड रेक्टेंगल है, थर्ड पेंटागन है ना, ये ये थर्ड, जो लाइन सेगमेंट से ही बना है, देखो आप, देखो आपका जो है ट्रायंगल में तीनों भी लाइन सेगमेंट्स हैं, आपके फर्स्ट फर्स्ट एग्जांपल जो आपका पॉलीगन में क्वाड्रिलेटरल है, वो भी फोर साइडेड है, तो फिर थर्ड वाला एग्जांपल है राइट जी साइड में, वो पेंटागन है, पेंटागन मीन्स फाइव साइडेड फिगर, समझ रहे हो, फाइव साइड। फाइव साइडेड जी देख सर। सकते हो ना आप? हाँ, तो वो पूरे लाइन सेगमेंट्स है, देखिए उसमें कर्व्स नहीं है, जो साइड्स हैं, जी तो वो इसमें सिंपल, वो सभी क्लोज कर्व, सिर्फ हाँ सिंपल क्लोज कर्व है, हाँ, सिंपल क्लोज ओपन कर्व कर्व है, नहीं है मेड ऑफ इसमें लाइन सभी। सेगमेंट। तो मतलब क्या है, एक्चुअली लाइन सेगमेंट को भी एक तरह का कर्व कहा जाता है, बट इन जनरल सेंस अपन अपन कर्व बोले ना, तो कर्व क्या है, ट्विस्टेड और बेंड रहता, जैसे कि सर्कल का है, देखिए हाँ ट्विस्टेड रहता, बेंड रहता, लेकिन लाइन सेगमेंट भी एक तरह का कर्व है, अगर उस ट्विस्ट और बेंड को अपन सीधा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट बन जाएगा, लाइन सेगमेंट। जी। तो पॉलीगन क्या है, जी पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है, और ये जो कर्व है, इट इज क्लोज कर्व मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स, समझ रहे हैं ना आप। तो ये जो जी सर। क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रायंगल हो गया, पेंटागन हो गया, इसके पूरे साइड्स जो है वो लाइन सेगमेंट्स है। लाइन सेगमेंट्स क्या होता है, जी टू एंड पॉइंट्स, एक लाइन में अगर दो एंड पॉइंट्स आप बना दिए, तो वो लाइन सेगमेंट हो जाता जी है, राइट। तो अब जी पॉलीगन्स को जो है ना, क्लासिफिकेशन अलग अलग नाम है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ साइड्स या वर्टिसेस, ठीक है। तो अगर अब थ्री साइडेड पॉलीगन रहा, तो उसको ट्रायंगल बोलते हैं। हाँ सर, अब इधर अगर सिक्स साइड्स है तो अपन को सिक्स साइडेड कौन सा हेक्सागन बोलते शेप है, लेकिन सिक्स साइड्स है तो हेक्सागन है वो। हैं, हाँ सिक्स साइड है तो हेक्सागन है, और थ्री हम्म, साइडेड है तो ट्रायंगल है, फोर साइडेड है तो क्वाड्रिलेटरल है, फाइव साइड्स है तो पेंटागन है, ठीक है ना, सिक्स साइड है तो हेक्सागन है, सेवन साइडेड है तो हेप्टागन है, एट साइड ऑक्टागन है, नाइन नॉन एगन, टेन का डेकागन, ठीक है। हम्म,
ओके तो 3 साइड से लेके 10 साइड्स तक के जो सभी पॉलीगन के आप नाम अगर याद रख लिए तो आपके लिए अच्छा है। वो याद रख लिए तो आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर आपको जो है ना शॉर्ट आंसर ऐसा कुछ जैसा भी आपका पैटर्न है एग्जाम का वैसा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल जो हमारे है पास 3। हाँ एग्जाम में वो फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं है, हाँ, क्या क्या सिर्फ रहता है? क्वेश्चन वही है इसके बारे में। प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, जैसा भी मतलब एक आइडिया रहना बेहतर है कि ट्रायंगल मतलब 3 साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर है, पेंटागन 5 साइडेड फिगर है, ठीक है, हेक्सागन 6 साइडेड, हेप्टागन 7 साइडेड। ये क्या है, याद रख लेना आप ये फिगर, ठीक है ना। तो पेज नंबर 154 में आपको टेबल है ना, नंबर ऑफ साइड्स, वर्टिसेस है, नेम ऑफ द पॉलीगन है, फिगर है, तो ये चीजें थोड़ा जी याद रख लेना, ओके सर। मेमोराइज कर लेना, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आप। ओके। देखो, हाँ, a line segment which connects two non-adjacent vertices of a polygon is called diagonal of the polygon। हाँ देखिए, तो अब ये जो है ए बी सी डी है, और उसमें जो है ए बी सी डी में ए डी और बी सी को डायगोनल्स बताए, तो आपको मैं अब बताता हूँ, लाइक। तो यहाँ पे क्या है, मैं पहले एरेस कर देता हूँ पूरा। तो अभी फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रॉ टूल है, ये मैंने एक पॉली एक बताया रेक्टेंगल या एक क्वाड्रिलेटरल समझो, ठीक है। तो इसके नाम जी सर। ए बी सी डी रखा मैंने, राइट। तो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस बोला, तो ए और बी इसमें आपको दिख रहा है ना, आपको व्हाइट बोर्ड, जी दिख रहा है सर। राइट। तो ए और बी क्या है, आपके एडजेसेंट वर्टिसेस है, और ए और सी जी क्या है, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है, समझ रहे हैं आप। ये देखो, जी ये ए के जस्ट बाजू में, ये ए और बी इन दोनों को एडजेसेंट बोलेंगे। ए और डी को भी एडजेसेंट बोल सकते हैं, बट ए और सी नॉन एडजेसेंट हो गए, राइट। जी सर। क्योंकि बीच में एक गैप आ गया ना, ये ऐसा जा रहा, हाँ तो इस, हाँ, तो उस वजह से ए और सी को नॉन एडजेसेंट बोलते हैं। जी तो ए और सी अगर अपन जो है ड्रॉ करते हैं, ए और सी को और बी और डी को ज्वाइन करेंगे, राइट, तो वो क्या यस। है, डायगोनल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अब जनरली डायगोनल। अब यहाँ पे ए डी और बी सी बताया, ओके, लेकिन अपने जी व्हाइट बोर्ड में क्या है, ए सी और बी डी बन जाते हैं, यहाँ पे ये जी देखो, ए सी एंड बी डी। अब अगर आप नेमिंग चेंज करें सपोज, ठीक है, जैसा कि आपके टेक्स्ट बुक में है, ये इसको ए बताया, और जो है कुछ ऐसा बता रहे ए बी, और फिर इसको सी बताया, इसको डी बताया सपोज, ठीक है ना। जी। तो उस केस में क्या है, नॉन एडजेसेंट ए और डी हो जाएंगे, बी और सी नॉन एडजेसेंट होंगे, तो नॉन डी, एडजस्टेड। ए डी और बी सी डायगोनल्स होंगे, राइट। जी। ए डी और बी सी डायगोनल्स। डायगोनल। जी, एडी। ए डी और बी सी, हाँ ठीक है। जी सर। ये ए डी आपका, और बी सी। अगर ए डी की जगह अगर ए सी आया तो ऐसा चेंज हो सकता है ना उसमें भी, हाँ, चेंज हो ए सकता सी है, डी देखो हो मेन जाएगा। मेन आपको क्या चीज जानना है कि कौन से एडजेसेंट है, कौन से नॉन एडजेसेंट है, समझ रहे हैं आप। देखो, मैं जी नंबरिंग नेम्स कुछ भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने समझो ये मैंने ऐसा बनाया है, ठीक है, जी और उसके बाद मैं वर्टिसेस बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ए दे दिया, सपोज ए दे दिया, ठीक है, जी राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे वर्टेक्स दिया, बी दिया, जी ठीक है। उसके बाद मैं आपको वर्टेक्स दे रहा हूँ यहाँ पे सी, जी सी, और फिर उसके बाद मैं ऊपर वर्टेक्स दे रहा हूँ डी, ओके। तो अब जो है ओके। ए के बाजू देखो, ए के बाजू क्या है, इस तरफ बी है, ठीक है, ए के जी बाजू सर। सी भी है, तो ए और सी, ए और बी, ये एडजेसेंट वर्टिसेस हो गए, समझ रहे हैं आप। जी लेकिन ए और डी जो है नॉन एडजेसेंट हो गया, जी समझ रहे हैं आप। अब ये समझ डायरेक्शन को रहे हैं। देखिए, ए और डी इन दोनों का जो है, क्योंकि ए और बी तो बाजू बाजू है, ए और सी बाजू बाजू है, तो वो एडजेसेंट हो गए, लेकिन ए और डी क्या है, दूर है,
समझ रहे आप? जी तो ये दिख रहा है। एडी को क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे, ए और डी नॉन एडजेसेंट, और फिर यहाँ पे बी और सी है, समझो, ठीक है, ये भी नॉन एडजेसेंट है, तो बी सी भी डायगोनल है। हाँ ठीक है, समझ रहे हो आप? अब मैं अगर जी कुछ भी दूसरा, सपोज मैं जो है अब यही लेना ऐसा जरूरी नहीं है। सपोज मैं एक रेक्टेंगल इस तरह से लिया, ठीक है, और मैं इसको जी नंबरिंग नेमिंग चाहे कुछ अलग करा, क्या मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इसको जो है पी क्यू आर एस रखता हूँ, यहाँ पे पी रखा मैंने, राइट, और इसको जी। जो है मैं समझो क्यू रखा, ठीक है, उसके बाद तो जो है यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैंने आर रख दिया, राइट, और उसके जी बाद मैंने यहाँ पे एस रख दिया। ओके, तो वो पी क्यू आर एस आप जो बना। हाँ, तो सर आप अब जो लिख रहे हो ना वो पी क्यू आर एस, वो दिख रहा नहीं है इस पे व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट मेरे बोर्ड को पे तो पी क्यू आर एस, वो हो गए, दिख रही नहीं है, लोड ही नहीं है। अरे अच्छा, अभी आपको पी क्यू आर एस रेक्टेंगल नहीं दिखा? नहीं वो सिर्फ वो पहले जो आप कराए थे ना वही दिखा, अभी रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है अभी। सब रेक्टेंगल नहीं कुछ दिख रहा है? लिखा तो दिख रहा है आपका वो। हाँ, अभी अभी कुछ हिल रहा दिख रहा है क्या, एक रेक्टेंगल हिल रहा है ऐसा? नहीं सर कुछ नहीं मिल रहा है, तो अच्छा, वही जगह पे। ये क्या हो रहा है एकदम? अच्छा, नहीं ये दिखना चाहिए। अच्छा, अभी आपको मैंने मतलब जो मैंने रेक्टेंगल बनाया ये नहीं दिख रहा बोल रहे हैं आप? नहीं दिख रहा सर। ओके, जस्ट एक मिनट अभी। ओके, अब मैं एक डायमंड डायमंड रखा मैं टॉप टॉप राइट कॉर्नर में, ये दिखा आपको डायमंड? हाँ जी डायमंड अभी आया है, दिखा अभी वो। अब ये आया, ओके ठीक है, चलो अब ये इसका मैं इसके ऊपर बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने सपोज नेमिंग किया पी क्यू आर एस, राइट, जी यहाँ पे मैं रख रहा हूँ पी, ठीक है, और समझो मैं, अच्छा पी क्यू आर एस क्यों, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है, सपोज पी है, और यहाँ पे टी लिया मैंने, ऊपर टी जी लिया, और उसके बाद मैं जो है यहाँ पे ए ले रहा हूँ, राइट, और यहाँ पे मैं सी ले रहा हूँ। ओके, तो अब आप ये फिगर को देख के समझ जा सकते हैं कि पी और ए, पी और सी एडजेसेंट है, समझ रहे हैं आप? हाँ इब्राहिम, समझ रहे हैं आप? जी सर समझ रहा पी हूँ, पी और लैपटॉप ए, में मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम। अच्छा अब आपको दिख रहा है पी ए और सी टी मैंने वर्टिसेस डाले, ये दिख रहा है आपको? जी क्या बोला आपने अभी? अभी बताया मैंने पी ए सी टी, जो मैंने नेमिंग किया ये डायमंड को, आपको दिख रहा है अभी राइट साइड में, टॉप टॉप राइट कॉर्नर में? नहीं डायमंड दिख रहा है, आपने जो नेमिंग की है वो नहीं आ रहा है। वो नहीं दिख रहा है, ओके ओके, ये क्या है एग्जैक्टली मैं, ठीक है मैं कुछ और अगर सपोज अब मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ पी, ये दिख रहा है आपको? आपकी एक बार पेंसिल का कलर चेंज करके देखिए, कोई चेंज हुआ होगा। अच्छा ठीक है, मैं देखिए। ट्राई करता हूँ, ओके, ठीक है, मैं कलर अभी रेड लिया हूँ, यहाँ दिख रहा है सी, हाँ जी अभी आ रहा है, दूसरा कलर का अभी दिख रहा ओके ओके, पी सी टी ए, क्या ये दिख रहा है आपको? है। हाँ जी अभी दिख रहा है, राइट PCTA। राइट राइट, तो अब आप ये जान लो आप कि पी सी टी ए मैंने किया, तो अब इसमें एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हैं, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हैं, बता सकते हो आप? नॉन एग्जिस्टिव वो PT और AC है। वेरी गुड और वेरी गुड। हम्म। एग्जिस्टिव PACT, TCA, हाँ TA, हाँ 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 AP। हाँ, राइट, वो एडजेसेंट है, राइट, ओके, तो मैंने नॉन एडजेसेंट को मैंने ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है, तो पीटी और एसी जी जो नॉन एडजेसेंट है मैंने उनको ज्वाइन किया, तो वो क्या हो गए, डायगनल्स बन गए, राइट, पीटी एक डायगनल हो गया, डायगोनल। एसी एक डायगनल हो गया, राइट, डायगोनल। तो मैं यहाँ पे ओके। लिख रहा हूँ पीटी एंड एसी आर डायगनल्स, आपको ये दिखा अभी मैंने जो टाइप किया? जी, नहीं वो किधर किया आपने वो? टाइप मैंने नहीं आया उसी के बोर्ड नीचे पे। टाइप किया मैंने। अच्छा, टाइप करने का, मेरे ख्याल से लोड नहीं हो रहा है, नेट का भी हो सकता है थोड़ा बहुत।
लोड नहीं अच्छा। हो रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे तरफ से तो नेट तो फास्ट है, ऐसा कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। क्या है एग्जैक्टली? नहीं, मेरा भी पहली बार हो रहा है, क्योंकि मेरे भी ऑनलाइन क्लास हुआ था ना, थोड़ा जब बारिश हुई थी इधर, तो ओके हम लोगों का ओके। ऑनलाइन क्लास अच्छा चला। हम्म। आप जो थोड़े बहुत लिख रहे हो अभी वो नहीं आया अभी तक, थोड़े बहुत लोड नहीं हुए थे पहले का भी। अभी जी जी। ट्रायंगल अभी बता रहा है मुझे अच्छा अभी ओके इसमें, ओके ओके। अच्छा आप अच्छा। जो बोला है। हाँ 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 शायद वही वो कुछ ऐसा कुछ। हम्म। जी। राइट। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका जो है, आपको मैं डायगोनल्स बता दिया, राइट। उसके बाद में क्या है? जी। आपका अब देखते हैं। ये उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपको डायगोनल्स बताया। फिर जो है आपके टेक्स्ट बुक में 155 पेज नंबर पे आप तो उसी के बाजू में एक और एक कॉम्प्लेक्स कुछ और एक फिगर है ABCDEF। ठीक है। उसमें क्या क्या बताया देखो, ACAD AE FB FC FD EB EC DB आर डायगोनल्स ऑफ द गिवन हेक्सागन। तो जो भी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है ना, वो वर्टिसेस आप मार्क कर लिए तो आपको डायगोनल्स बन जाते। लाइक ए है, ठीक है, ए के बाद आप बी जी। छोड़ दीजिए, सी ले लीजिए, तो AC क्या है, एक डायगोनल बन गया। समझे आप? जी। तो बाद में सी के बाद डी है, तो AD को ज्वाइन कर लो, वो एक डायगोनल बन जाएगा। उसके बाद AE को ज्वाइन करो, वो एक डायगोनल बन जाएगा। अब AF क्या है, साइड ऑफ द पॉलीगन है, तो AF डायगोनल नहीं बनेगा, और A और F क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस है। समझ रहे हैं आप? एडजस्ट है। राइट। जी। तो उसलिए AF डायगोनल नहीं है, साइड है वो। उसी तरह अगर आप B ले लेते हो, तो B लेते हो तो B और C एडजेसेंट हो जाएगा, बट B और D जी। नॉन एडजेसेंट हो जाएंगे, तो BD एक जी। डायगोनल बन जाएगा। ओके। BD और BF और BE भी वो बन जाएंगे करेक्ट नॉन करेक्ट, वो एडजस्टेड भी डायगोनल। डायगोनल बन जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि वो सब नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है। जैसा ही नॉन आपको एडजस्ट। नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस समझ में आ गया ना, बस उन दोनों को जब ज्वाइन कर दिए तो आपको डायगोनल मिल जाता। जी। समझ रहे हैं आप? अब सी ले लिए, जी। तो सी को क्या है, बी एडजेसेंट है, डी एडजेसेंट है, तो CB और CD क्या है, साइड्स हैं, वो डायगोनल्स नहीं होते। तो C और A ले लो क्या, डायगोनल ठीक है, से। वो एक डायगोनल बन गया। अब D हाँ। को छोड़ दिए तो बचा क्या, E। अब तो CE एक डायगोनल बन गया। ई। अब E के बाद F बचा, CF ज्वाइन करो, CF एक डायगोनल बन गया, राइट। यस। ऐसा। तो आप डी ले लिए समझो, तो डी और सी जो है आपके एडजेसेंट हो गए, डी और ई एडजेसेंट हो गए, तो ये दोनों को नहीं लोगे, बाकी एडजस्ट। सबके साथ ज्वाइन कर दो, बाकी सभी वर्टिसेस के साथ आपको डायगोनल बन जाएंगे। डी समझ रहे हैं? से BDBDFDA करेक्ट करेक्ट, नॉन डी बी एडजस्टेड। डी एफ डी ए। ऐसा समझे आप? अब ई को ले लिए, तो ई के दो जी। एडजेसेंट क्या है, डी है, एफ है, उन दोनों को हटा दो, बाकी के बचे क्या, जी। ABC, तीनों के साथ ज्वाइन कर दो, ए के ए साथ बी बी के सी साथ ज्वाइन। करेक्ट, तो EA EB EC, ये आपके डायगोनल्स बन गए। जी सर। समझ गए आप? जी सर। इब्राहिम, अब एफ ले लिए, तो एफ को एडजेसेंट क्या हो गया, ए हो गया, ई हो गया, ए और ई को गोली मारो, बाकी बचे क्या, BCD। तो FB FC FD, बी ये सी तीन। डी हाँ BCD, तो F और B को ज्वाइन करो, F और C को ज्वाइन करो, F और D को ज्वाइन करो, FB FC FD, ये तीन डायगोनल्स जी। हो गए। जी। राइट, और ए के साथ तो शुरुआत कर रहे थे आप, तो ACADAE, ये तीन हो गए, ऐसा। हाँ। हाँ, अब और एक जो है डिवीजन है टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, तो आप टेक्स्ट बुक में देखिए, कॉनकेव पॉलीगन्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स है। कॉनकेव पॉलीगन में क्या बता रहा है, इन विच पॉलीगन इन विच वन और मोर इंटीरियर एंगल्स इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है। मिनिमम एक एंगल क्या है, 180 डिग्री से बढ़ के रहना। तो आप पहला एग्जांपल देखिए, जो एक रॉकेट के जैसा, जो पेपर से रॉकेट बनाते ना, जी। जी। उसके जैसा दिख रहा है, फर्स्ट देखिए। ए। राइट, 155 है पेज, जी। फर्स्ट पहला वाला। तो जो एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर जो बताया, जी। वो एंगल क्या है, डेट इज मोर देन 180, और इंटीरियर एंगल है, अंदर का। समझ रहे हैं आप? जी। जी। समझ समझ रहे रहे हैं हैं। ना आप? देख रहे हैं ना टेक्स्ट बुक का पेज 155? हाँ, मैं टेक्स्ट बुक खोल के इधर ही देख हाँ रहा हूँ। राइट, तो पहला जो कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन में फर्स्ट एग्जांपल है ना, वो एंगल मोर देन 180 है, जो बता रहा है पहला, फर्स्ट फर्स्ट रॉकेट रॉकेट जो बताया, देखिए। जी। हाँ वो का उसका। मोर देन 180 डिग्रीज है। करेक्ट उसका जो करेक्ट, तो स्ट्रक्चर है। कॉनकेव है वो। तो सेकंड जी। एग्जांपल देखो, उसमें भी क्या है, आपका मोर देन 180 है, जो एंगल बताया देखो अंदर का, वो भी कॉनकेव पॉलीगन है। माउंटेन शेप में बन रहा था वो, थोड़ा माउंटेन शेप की तरह ही हाँ है। हाँ हाँ, राइट राइट।
ऐसा है, समझ रहे वही हैं आप? नीचे थोड़ा एंगल नीचे हो जा रहा है, वो हो गया, राइट, इसलिए राइट। थोड़ा बहुत करेक्ट। हम्म। एंगल ग्रेट हो करेक्ट। तो ग्रेटर। उसमें थर्ड एग्जाम्पल भी है, थर्ड एग्जाम्पल में भी 180 से बढ़ के बता रहा है, तो वो कॉनकेव पॉलीगन होगा। कॉन्वेक्स जी पॉलीगन में क्या है कि ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180। तो अब ये क्वाड्रिलेटरल है पहला, तो हर एक एंगल क्या है आपका, लेस देन 180 डिग्रीज है। वो क्या है आपका 90, 100 हो सकता, 120 हो सकता, ठीक है, बट लेस देन 180 है, राइट? 30 जी डिग्रीज हो सकता, 40 डिग्रीज हो सकता, लेस देन जी 180 रहता। उसी तरह देखो क्वाड्रिलेटरल में देखो, पेंटागन में देखो, ट्रायंगल में देखो, तीनों भी एग्जांपल्स में अंदर के जो इंटीरियर एंगल्स है ना, जी वो लेस देन 180 180। है ना? समझ रहे हो ना आप बात को? जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ। करेक्ट, हर एक एंगल लेस देन 180 है, तो इसीलिए कॉन्केव कॉन्वेक्स। में। कॉनकेव में देखो हाँ जी एक या मोर देन वन, या तो एक या उससे ज्यादा एंगल्स क्या है जी 180 से बढ़ के रहते हैं। तो आप देखो ऊपर के एग्जांपल्स में देखो, आप कॉनकेव में जो भी एंगल बता रहा है अंदर, सेमी सर्कल के जैसा एक जी कर्व्ड लाइन बता रहा है ना, वो 180 से बढ़ के है वो एंगल, जी जी है ना? जी अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड में बताता, लेकिन कुछ चीजें दिख रही हैं, कुछ चीजें नहीं दिख रही हैं, बोल के मैं जो है टेक्स्ट बुक में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक बार ट्राई करता हूँ। ये देखो आपको कुछ जी। अभी मैं एक ड्रॉ किया, दिखाई दिया आपको रेड कलर से? नहीं, तो यही प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं अभी इस, आया। अभी थोड़ा आया। थोड़ा लोड हो रहा है, वो एक एक लाइन लोड हो रही लोड है। होने में टाइम लग रहा है, करेक्ट वही। एक मिनट में जरा आपको, एक मिनट। हाँ, तो ठीक है। तो अभी देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको। ये मैं अभी जैसा फिर से और एक बार बताता हूँ। ये एक मैंने ऐसा बनाया, ये ऐसा बनाया, ये जी ऐसे, ये ऐसे, दिखा आपको मैंने अभी जो बनाया? हाँ जी, अभी दिखा एक वेरी गुड। तो अब इसमें ऊपर मैं टॉप एंगल एंगल जो राइट है साइड। आपको अभी बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए। मैंने एंगल ड्रॉ किया ऐसा, राइट? ठीक है। जी हाँ, ये फ्री हैंड ड्राइंग जरा अच्छी नहीं आ रही, माफी चाहूंगा मैं, इसके ऊपर मैं ज्यादा सही नहीं बता पा रहा हूँ। तो इसको आप समझिए, ये जो नहीं, कोई एंगल बात बता रहा हूँ ना मैं, ये मोर देन 180 है, जी। ठीक है? ये एंगल, मतलब जो एंगल उसके अंदर अंदर है, जो जाते हैं, वो अंदर जो जा रहा है वो उसका जो एंगल है वो थोड़ा ज्यादा है, डिग्री ज्यादा है। 180 से 180। ज्यादा है, करेक्ट। अगर 180 डिग्रीज होता तो वो स्ट्रेट लाइन होता ऐसा। मैंने राइट साइड में और एक स्ट्रेट जी लाइन ड्रॉ किया, देखिए। हाँ जी, आ रहा है लोड, हाँ, तो दिख वो रहा है। 180 डिग्रीज है। और अगर वो ऐसा होता, कुछ ऐसा, ये, तो ये जो जी एंगल है ना, ये मोर देन 180 है हाँ, वो एंगल ऊपर उसका टॉप का बने। ना? अभी मैंने हाँ जो बाजू में बनाया फिर और एक बार, वो मोर देन 180 डिग्रीज है, हाँ जी करेक्ट। मैंने ऐसे पॉइंटेड एरोज भी बताया उसको, ये देखो यहाँ पर। हाँ जी, दिख रहा है उधर उस पे ये मोर पॉइंटेड देन एरो वन जो ये है। मोर देन 180 है, 180 है। करेक्ट। 180। इसीलिए हम्म, इनको कॉनकेव पॉलीगन कहा जाता है। जी। समझ में आया आपको? कॉन्वेक्स पॉलीगन का पूरे साइड इक्वल होती है या नहीं, 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 साइड्स साइड्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एंगल की बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स में वही देखिए एंगल साइड्स, इक्वल होता है या नहीं? नहीं, नहीं, पूरे इक्वल नहीं, इक्वल लेस होती देन है? 180 है, लेस देन 180। ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180। इक्वल अनइक्वल की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, समझ रहे हैं आप? कि अब मैंने जो है हाँ ये बताया, ये एंगल बताया मैंने, ये अभी आपको मैंने पॉलीगन बताया, कॉन्वेक्स पॉलीगन। अभी दिखा आपको रेक्टेंगल मैंने जी ट्रेपेजियम बनाया, जी। ओ हाँ है। दिखा? जी दिखा है, दिखा। राइट। ऊपर अब टॉप पे इसमें, बनाए हैं। करेक्ट, इसमें अब हर एंगल देखो आप, हर एंगल लेस देन 180 डिग्रीज है, जी करेक्ट। जी करेक्ट। हाँ, तो इनको कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे, क्योंकि हर एंगल 180 से कम है। लेकिन इससे पहले जो मैं बताया 180। उसमें एक एंगल या उससे बढ़ के, वो क्या होगा, 180 से जी बढ़ के रहेगा, मोर देन 180 डिग्रीज। कोई एक एंगल हो सकता या एक से बढ़ के हो सकता, हर एंगल होना जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं आप? कोई एक पॉलीगन जी में सर। हर एक एंगल मोर देन 180 हो, ऐसा नामुमकिन है ऑलमोस्ट, समझ रहे हैं आप? एक हो सकता है या जी दो हो सर। सकते हैं, समझ रहे हैं आप? जी जी तो इस तरह क्या है, ये जो आपका मैंने अभी बताया रेक्टेंगल, सॉरी, पॉलीगन, एक क्वाड्रिलेटरल बताया मैंने, राइट?
उसमें हर एंगल, हर जी इंटीरियर एंगल 180 से कम है। जी। तो उसलिए क्या है उसको, क्या उसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। और कॉनकेव कॉन्वेक्स। पॉलीगन में या तो एक एंगल या एक से बढ़ के, एक या दो तीन, ऐसा हर एंगल नहीं, एक एंगल या एक से बढ़ के 180 से बढ़ के रहता, 180 से मोर, लाइक 190 डिग्रीज, 200 डिग्रीज, 210 डिग्रीज, ऐसा। जी समझ में आएगा सर। ओके, ये हो गया। तो आज के लिए मतलब इतना काफी करते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ 12-10 हो गए। पहला क्लास था एक, मतलब मैं जस्ट एक इन जनरल आपको कितना समझ में आ रहा, आपकी मालूमात कितनी है, ये एक जायजा लेने के लिए लिया मैं क्लास। जी। हाँ, तो फिर आप देखिए, आप डिस्कस करिए, आपको फिर कितना समझ में आ रहा, तो इस हिसाब से क्या है, कल से क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। अगर कल से कंटिन्यू कर रहे तो क्या टाइम पे होगा फिर? टाइमिंग ये देखो, मैं आज जरा देर हो गई मुझे, मैं माजरत चाहता हूँ। 10:15 या 10:30 इंडियन टाइम, यानी कि आपको जो है कैसा होगा देखो, टेन अगर थर्टी या टेन टेन 10:30 फिफ्टीन या या 10:30 इंडियन टाइम बोल रहा हूँ मैं, तो आपको जो है अगर 7:45 PM या 8 PM होगा मैक्सिमम। ओके, मैं देख लो। देख देख। ओके, ठीक। अल्लाह हाफिज। ओके, चलेगा आपको ये टाइम 7:45 8 PM? जी सर, मैं वो फ्री होता हूँ वो टाइम, कुछ नहीं तो होता है वही दिन में। वही मैं वही आपको कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि 7:45 8 PM टाइम रहेगा। अभी मैंने कैसा पढ़ाया, आप अपने वालदा को, अगर पेरेंट्स को आप बोलिए। 10:30 बोले तो इधर 9 o'clock होते रहते हैं, 9 o'clock होएगी मेरी फिर। 10 नहीं, 9 नहीं, 2.5 आवर का डिफरेंस है ना, यूएई का यहाँ का। हाँ लेकिन फिर नहीं, अब्बू से मैंने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा हाँ, इंडिया के 10:30 इधर 9 o'clock होते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं अभी अभी मैं चेक करता हूँ। एक बार आप चेक कर ले फिर। हाँ, अभी देखो, यूएई प्रेजेंट टाइम मैंने मारा तो अभी क्या बता रहा है यहाँ पे, अभी हमारे पास 10:40 हो रहे हैं 10:40 यूएई हो में। रहा है ना, राइट। तो 10:40 जी हो रहा है। अरे यार, ये तो जस्ट, हाँ, 1.5 आवर का डिफरेंस है। 1.5 आवर का हाँ, डिफरेंस है, मैंने 2.5 आवर समझ लिया। ओके ओके, जी। मैं गलती पे हूँ। ओके, तो फिर आप, राइट, आप मतलब आप बोलिए, फिर 10:30 को शुरू करूँ मैं, 9 o'clock होंगे आपको। हाँ कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा, ज्वाइन हो जाऊंगा 9 o'clock डेफिनेटली, को, डन इससे कोई डन बात डन, चलो बहुत अच्छा है, फिर तो 1.5 आवर थे तो कोई मसला नहीं है। चलो, मैं आपको जो है नहीं। 10:30 को इंडियन टाइम स्टार्ट कर देता हूँ, मतलब आपको जो है मैं एक 15 मिनट पहले, उससे आप, उससे 15 मिनट पहले आपको लिंक भेज दूंगा मैं। ओके सर। ठीक है, या फिर एक परमानेंट लिंक बना नहीं, देंगे वो, आप करेक्ट। यही हाँ, यही लिंक होगी ना या नई लिंक बनाओगे आप? मैं वो देखता हूँ, मुझे वो एक्चुअली मतलब एक एक परमानेंट लिंक बना सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। मैं ये पता करके जूम का मैं आपको परमानेंट नहीं, लिंक आप वो भेज दूँ। आपके जीमेल से अगर लॉग इन करोगे आप जूम जूम डाउनलोड करके ऐप में, जी तो आप जी बना जी। सकते हो उससे अच्छा अच्छा, तो परमानेंट लिंक। हाँ, इंशाल्लाह मेरे को मालूम चल जाएगा, इंशाल्लाह मैं कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तो वो आपको एक परमानेंट लिंक भेज दिए तो आपको टाइम, शेड्यूल टाइम पे आप डायरेक्ट क्लिक करके लॉग इन हो जा सकते हैं। जी। ठीक है, ठीक है, तो फिर आपको हाँ, जैसा समझ में आया, क्या जो भी आपके तजुर्बात हैं, आप एक मर्तबा जो है घर में बोलिए आप, और उसके बाद फिर जी, शुरू मुझे कर तो देंगे। अच्छा लगा, समझ में भी आया आपकी क्लास में। समझ, हाँ हाँ, वही जरूरी है, आपको समझ में आया, एंजॉय कर रहे हैं आप सेशन, आपको पढ़ना पसंद आ रहा, आप आगे बढ़ना चाह रहे, तो वो अपने लिए आपसे से। पहले भी एक टीचर के हम्म, पास गया था, उन्होंने भी समझाए थे, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने वो नहीं दे रहे थे, वो सीधा जी, एक्सरसाइज पे चले जा रहे थे, वो पीछे का नहीं समझा रहे थे पूरा लेसन के अच्छा बारे में। अच्छा, हाँ, तो उनको बोला बेसिक्स, भी था मैं कई हाँ, बार। नहीं नहीं, बेसिक्स बुनियादी जरूरत पहले है, वो बुनियाद आपके पुख्ता हो गया तो फिर आगे का आप आसानी से समझ सकते जी। हैं। जी, चलिए ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है, फिर मैं आपको जो है ना लिंक, एक लिंक बना दूंगा, तो आप 9 PM आपके और मेरे 10:30 टाइम, उस हिसाब से हम लोग डेली शुरू कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, चलिए, अस्सलाम वालेकुम। ओके। अल्लाह हाफ़िज़।